السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات، حضرت العلام حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان مصباحی الازہری صاحب سے تقریر ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ حضرات میرے ویڈیو میں نئے آئیں تو سب سے پہلے میرے ویڈیو چینل العظیم بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دوسرا غالب آ ہی نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں۔ فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے۔ کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی۔ اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے۔ سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے۔ تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ہی آ جائے؟ آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان۔ کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانیں جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا۔ کفار و مشرکین کے تو پتہ ہے کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ ان میں سے 1/3، ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور ان پر کیا فرمایا؟
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दुनिया के रोए जमीन के बदतरीन लोग होंगे, उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। वो सबसे बदतरीन लोग होंगे, पीठ दिखाकर जो निकल चुके। दूसरा मरहला आएगा, दूसरा पड़ाव, ये एक बहुत सख्त स्ट्रगल करने वाला मैदान है, मुसीबत उठा रहे हैं, मुशक्कत उठा रहे हैं। दूसरा दिन ऐसा होगा कि मोमिनीन की जमात का 1/3, 1/3 हिस्सा शहीद हो जाए, कत्ल हो जाएंगे। सोचो ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों चीजों पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। 1/3 हिस्सा मैदान छोड़कर भाग जा रहा है और 1/3 हिस्सा कत्ल हो गया, शहीद हो गए। बचे कितने हैं? 1/3। लास्ट में 1/3 हिस्सा बचा है, यानी एक में अगर 3 पार्ट करें तो 2 पार्ट तो खत्म हो गए, 1 पार्ट बचा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आखिरी 1/3 हिस्से को फतह मुबीन अता फरमाएगा। फतह तो है उनकी, फतह होगी उनकी, लेकिन जो हिस्सा बचा होगा वो आखिर का 1/3 हिस्सा होगा। अब इस पर मुझे अर्ज ये करना है, मोमिनों को अगर फतह देखना है, अल्लाह की नुसरत और मदद देखनी है, तो ये 2 चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कौन सी? पहली चीज अपनों का छोड़कर भाग जाना, और दूसरा अपनों का अपने सामने मर जाना। ये दोनों चीजें हमें देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जो छोड़कर जा चुके होंगे, दामन छुड़ा रहे होंगे, भाग चुके होंगे, और कुछ वो होंगे जो लड़ते लड़ते अपनी जान दे चुके होंगे। ये दोनों भी बहुत सख्त मसले हैं मेरे अजीजों, इंसान को ये पिघला देती है चीजें। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे अपने जानने वाले लोगों में से कुछ लोग मुझे छोड़कर भाग जा रहे हैं, तो यही इंसान टूट जाता है, उसके दिल की कैफियत बदलने लग जाती है, वो फिर मायूसी का शिकार होने लगता है। मेरी जमात में 100 लोग थे, 90 तो भाग रहे हैं, 10 क्या करेंगे? उसका अंदर से जो अज़्म था, हौसला था, वो डावाडोल होने लग जाता है। अपनों का छोड़ना ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वो किसी भी मैदान में आप देख लें, किसी भी मैदान में अपने लोग अगर छोड़ देते हैं तो ये उसके लिए आजमाइश है बहुत बड़ी। और दूसरी आजमाइश तो ये है, बच्चे आधे थे, उसमें से तो आधे इंतकाल कर गए। कभी मेरा अजीज दोस्त, कभी मेरा अजीज मशवरा देने वाला मुशीर, कभी बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट करने वाला, ऐसे लोग जब इंतकाल करने लग जाएं तब फिर आदमी फिर टूट जाता है। कुछ तो भाग गए और कुछ तो कत्ल हो गए, मैं क्या करूंगा? मेरे अजीजों, जो आखिर में बचने वाले लोग जो होते हैं ना, वो मामूली नहीं है, वो अल्लाह की जात पर सबसे ज्यादा तवक्कुल करने वाले लोग हैं। उनको कोई चीज हटा नहीं सकती, अपनों की बेवफाई भी उनके कदमों में लर्जा नहीं लाती, और अपनों का इंतकाल हो जाना भी उनके हौसलों को नहीं तोड़ता। तभी जाकर के अल्लाह ताला उन्हें फतेह मुबीन अता फरमाता है। और ये चीज मलहमतुल कुबरा में देखी जाने वाली थी, देखी जाने वाली थी, जो कयामत के करीब होने वाली जंग है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हमने अपनी आंखों से ये मुशाहिदा किया है गज्जा की सरजमीन पर, फिलिस्तीन में 15 महीने के बाद आज सहयूनी हुकूमतें और यहूदी गासिब हुकूमतें सुलह करने पर और एग्रीमेंट करने पर मजबूर हो गई। दुनिया इनके मुंह पर थूक रही है, तुम 50,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल करके सिर्फ 200 लोगों को छुड़ाने के लिए आज भी फतह का जश्न मना नहीं पा रहे हो, बल्कि फिर झुक करके इनके साथ मुआहिदा एग्रीमेंट करने पर मजबूर हो। ये फतह उन बच्चों की नहीं है तो और क्या है, उन मजलूमों की नहीं है तो और क्या है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़े तक नहीं रह गए, उनके इलाज मुआलजे के लिए दवाइयां नहीं रह गई, लेकिन आज़म और हौसला ऐसा है कि अल्लाह अभी हमारे साथ। मेरे अजीजों, उनके तवक्कुल और उनके आज़म के मुतालिक ये सिर्फ और सिर्फ अखबार की बातें नहीं है, सोशल मीडिया की बातें नहीं है। मुखबिर सादिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बशारत दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिमश्क के अबवाब या फिर बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वालों में एक जमात हमेशा क़यामत तक ऐसी रहेगी जो हक के लिए लड़ती रहेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हक के लिए वो लड़ती रहेगी, क़यामत तक एक जमात होगी। और उनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं
کہ उन ला यदुरुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम, उनको धोखा देने वालों का धोखा उन पर कुछ असर नहीं करेगा, या फिर उनको छोड़ देने वाले या उनकी बात नहीं करने वाले, ये सब चीजें उनको कुछ भी जरर नहीं पहुंचाएंगी। मैं इससे कबल इसी मस्जिद में आपके पास इस हदीस को दोहरा चुका हूं, बयान कर चुका हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उनको कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचाएगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप हो सकता है सवाल करें, इमारतें टूट कर राख में बदल गई, हजारों बच्चे कब्रों में सो गए, कितनी औरतें बेवा हो गईं, कितनों के घर उजाड़े गए, कितनों के हाथ पैर तोड़े गए हैं बमबारी में, वहां पर कौन सही सलामत रहा? 2 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए, और मौलाना आप कहते हैं हुजूर ने फरमाया हदीस में उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं है तो और क्या है? हो सकता है आपके जहन में सवाल गर्दिश कर रहा हो, आप बार बार ये सोच रहे होंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको कोई चीज नुकसान नहीं देगी, धोखा देने वालों की धोखाधड़ी से उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना तो बिगड़ चुका, पूरा राख में बदल गए, इलाज कराने के लिए दवाई तक नहीं है, तो फिर क्या? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उनको जरर नहीं होगा। फिर ये सारी तकलीफें और ये जरर क्या है? मैं बताता हूं मेरे अजीजों, जिस्म का नुकसान, जान का नुकसान, माल का नुकसान, जायदाद का नुकसान, ये अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। ये नुकसानात मोमिन के लिए कोई माने नहीं रखते। अगर ईमान सलामत है तो पूरी कायनात सलामत है, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक उनके साथ रखा है, उनका ईमान महफूज है, ईमान मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारे नुकसानात कुछ माने नहीं रखते। इसलिए कि ये तकलीफें, ये जो सारी मुसीबतें आई हैं, इस पर तो अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा फरमाया है, अजर अजीम का वादा फरमाया है। हाँ, अगर ईमान ही चला जाता तो फिर कौन सी जन्नत मिलती, कौन सी खुशबू जन्नत पाते? कुछ नहीं होता। ईमान सलामत है, जिसकी वजह से उन्हें दुनिया में भी अल्लाह सुरखरुई अता फरमाएगा। एक भी जगह से कहीं उन निहत्ते मुसलमानों को जो गरीब मजलूम हैं और टूटे फूटे हाथों और टुकड़े पहने हुए बच्चे हैं, उनको कोई ये नहीं कहता कि ये जालिमों के लोग हैं, बल्कि हर कोई ये कहता है एक जालिम के खिलाफ जिसके पास दुनिया के सारे आइटम पावर हैं, लेकिन ये निहत्ते बच्चे खड़े हैं, दुआएं भी उनके साथ हैं और रहमत इलाही भी उनके साथ है। सलाम है उन गजा के मजलूमीन को। और वहां तो बच्चे, मर्द तो मर्द, औरतें, आपने सुना होगा उन जवान लड़कियों का मैंने देखा था, वो कह रही थी कि हम रात को बुर्का पहन करके और रात को हम हिजाब पहन करके सो जाती हैं, इसलिए कि बमबारी में जब घर तबाह हो जाते हैं, सुबह लोग लाशें उठाने आते हैं तो कहीं हम बेपर्दा लाशों में ना मिल जाए। सलाम उन बहनों को। आज वो औरतें सबक ले उनसे जिनको अल्लाह ने हर तरह की नेमतें दी है। तुम्हारे घर में जायदाद बेपनाह है, माल और दौलत बेपनाह है, कपड़े रोज बदलने के लिए तुम्हारे पास है, सब रख करके तुम औरतों को, आज हम बाजारों में जो बेपर्दा देखते हैं, ये शादी महलात में हर जगह जो औरतों की बेहयाई और बेपर्दगी देखकर फिर मैं सोचता हूँ सलाम उन बहनों को जो मौत की रात भी हिजाब हटाना नहीं चाहती, इसलिए कि दुनिया से जाए तो अल्लाह की बारगाह में हिजाब के साथ जाए। ये ईमान हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद भी आती है, नुसरत इलाही आती है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, 50,000 का खून कर देने वाला वो जालिम और गासिब इसराइल, वो अपने 200 कैदियों को छुड़ा क्यों नहीं सका? वो हासिल क्यों नहीं कर सका 200 लोगों को, बल्कि उनमें से 5 लोगों को क्यों नहीं हासिल कर सका? 50,000 को कत्ल कर डाला, और वो भी सिविलियंस को, शहरियों को, जिनसे तुम्हारा मुकाबला है, उनकी मौत की तो कोई खबर ही नहीं आती। जो तुमसे बरसरे पैकार हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके मौत की खबर नहीं आती। बच्चों की मौत, औरतों की मौत, हॉस्पिटल में मौत, ये सारा जो नाच देखा गया है 15 महीने से हम देखते आए। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे अजीजों, अल्लाह का अजाब उन जालिम बादशाहों पर भी आएगा जो इनकी मौतों पर देखकर तमाशे कर रहे हैं। वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं, वो अपने ऐश कदों में शराब नोशी और कबाब खोरी पर मसरूफ हैं, और इन बच्चों की तड़पती हुई लाशों पर वो अपनी कुर्सियां सजाए बैठे। वो अरब के जालिम बादशाह कहाँ है जिनके घरों में सोने के टॉयलेट बनाए गए हों, जो सोने की कुर्सी पर बैठ करके
हुकूमत और तख्त बिछाते हो। मेरे अजीजों, उनकी भी पकड़ आने वाली है, आप इंतजार करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनक़रीब जुल्म करने वाले ये पहचान लेंगे कि अल्लाह उनको किस पलटी में गिराएगा, वो किस पलटी में, किस खाई में जाकर के गिरेंगे। अंदाजा करो, जालिम सिर्फ वो ही नहीं है जो बमबारी करता है और कत्ल आम करता है, जालिम वो भी है जो तमाशाई बन करके लोगों का सपोर्ट करता है, उन लोगों को सराहता है जो जुल्म कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है, वो चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए, और फिर आखिर में वो बच्चों ने पुकार करके ये भी कहा हमें किसी जगह से मदद की उम्मीद नहीं है, ना हमारे पड़ोसी मुल्क से, न किसी बहुत बड़े मुस्लिम बादशाह से, हमें उम्मीद है फतह की और मदद की तो परवरदिगार आलम से है। और यकीनन मोमिनों के लिए अल्लाह ने यही फरमाया वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करें। मैंने देखा है मेरे अजीजों, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा सकती है तुम्हें, इनके यहाँ मदद की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हमारे साथ खेलते हैं, इनके दिलों के अंदर से रहम गायब है। ये बच्चों की तड़पती हुई लाशों को देखकर कोई आवाज तक नहीं उठाता, जो आवाज उठाने वाला उसको केस करके बंद कर डालेंगे। जो भी अगर मजलूमों के लिए आवाज उठाए, उनका परचम लहराए, तो कितने तो यहाँ पर FIR हो गए, बंद कर दिए गए। क्यों? मजलूमों के लिए आवाज उठाना क्या ये हमारा राइट नहीं है, हमारा हक नहीं है? तुम जालिमों के लिए अलल ऐलान बात कर सकते हो, हम मजलूमों की बात भी नहीं कर सकते। कैसी बात है मेरे अजीजों, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत नाम की कोई चीज है तो वो ईमानी ताकत है, बाकी कोई चीज, कोई ताकत और कुव्वत तुम्हारी मदद नहीं करेगी। वो कुव्वत ईमानी है जो बद्र में सहाबा के साथ थी, वो कुव्वत ईमानी है जो उहद में भी सहाबा के साथ थी। वो ईमानी ताकत और कुव्वत का जोश ही है जो 4000 होते तो 40,000 पे भारी हुआ करते थे। वो ईमानी ताकत वो कुव्वत ही है जिसपे अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। आज मोमिनो, आप सबसे ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। मैंने देखा है मेरे अपने मामलात में 8 महीने तक मैं स्ट्रगल करता रहा, पल पल देखता रहा, और ऐसी जमीन पर मुझे लिटाया जाता जहां फर्शी भी नहीं है, पत्थरों की जमीन पर लेट लेट करके हमारी कमर टूटने पर आती। उस वक्त लोग ये कहते फलां की तरफ से मदद आ जाएगी, फलां की तरफ से मदद आ जाएगी, हमने ये लाइन भी लगा दी है, ये सोर्स भी लगा दिया है, हर तरफ देखता रहा। आखिर में फिर यकीन हुआ मदद कहीं से नहीं, मेरे परवरदिगार से ही आएगी। अल्लाह ही मदद करता है मोमिनों की। बस ये है कि सब्र जरूरी है और थोड़ी मुसीबत उठाना जरूरी है, इसलिए कि मिजाज है इस्लाम का, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपनी कुर्बानियां दो और कुर्बानियां जाया नहीं होती, रंग लाएंगी, हमारी शहादतें रंग लाएंगी। उन बच्चों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जो 40,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो रंग लाएगी। फतह बैतुल मुकद्दस के लिए इनकी कुर्बानियां, इनकी शहादतें एक अजीम बाब बन करके निकलेंगी, एक अजीम दरवाजा बन करके निकलेंगी। आप इंतजार करना, वो दिन करीब आ रहा है जिसके मुतालिक मेरे मुस्तफा ने बशारतें दी हैं। एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। वो दिन आएगा, ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी मेरे अजीजों। और अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया, आप लोग डरते होंगे मौलाना फिर से ये सारी चीजें बोल रहे हैं, उनको बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, बहुतों को बुरा लगेगा, ये मेरी बात नहीं, कुरान कहता है वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह कुरान में फरमाता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, लोग तो चाहते हैं अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दें, अल्लाह के चिराग को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दें। अल्लाह का चिराग इस्लाम है, अल्लाह का चिराग ये कुरान है, अल्लाह का चिराग रसूल पाक की जात है।
اور ظالم یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھوکوں سے اس چراغ کو بجھا دے, اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو, اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا, اگرچہ کافر یہ بات ناپسند کرتے ہوں, اگرچہ مشرک یہ بات ناپسند کرتے ہوں, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, یہ بات تو بری لگے گی ہی. ایسا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہونے والا ہے جو قرآن نے کہا. یاد رکھو, زمین اوپر جا سکتی ہے, آسمان نیچے آ سکتا ہے, لیکن میرے رب کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا. جو قرآن نے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا, اور اسی پر ایمان ہم سب مومنوں کی شان ہے, ہم سب مومنوں کی شان ہے. بس آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے, آؤ ان برائیوں کی وادیوں سے جس میں پڑے ہوئے ہو, نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں, تمہاری نمازوں کا حساب کر لو, تمہارے اپنے اعمال کا حساب کر لو. اللہ کی مدد کو پکارتے ہو تو یقیناً اپنے چہرے صاف تو کر لو, اپنے دلوں کو پاک تو کر لو, اپنے اعمال, اپنی پیشانیوں کو مسجدوں کے سجدوں سے سجا تو لو. پھر مانگنے میں تمہیں ایک مزہ بھی آئے, ایک لطف بھی آئے, رحمان کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو آپ کو لطف بھی آئے, اپنے لیے بھی اور مظلومین کے لیے بھی مانگنے میں مزہ تو آئے. لیکن جب آج ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر یہ دل میں بات آتی ہے, فجر تو قضا کر کے سویا تھا, عشاء تو پڑھا نہیں تھا, اور میرے حالات یہ ہیں, حرام کھایا ہوا ہے, کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے. ان تمام معاملات کو لے کر کس طرح سے ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ پہلے اپنے آپ کو پاک کر لو میرے عزیزو. جب صاف ستھرے ہو جاؤ تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی. اس لیے کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے, صاف پیالہ لے کر کے آؤ گے تو دودھ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور مٹھائی بھی دی جا سکتی ہے, لیکن پیالے میں ہی کیچڑ بھر کر کے لاؤ تو دودھ دینے والا کیا اس میں دودھ ڈالے, اور مٹھائی دینے والا کیا اس میں مٹھائی ڈالے. یہ تو دنیا والوں کا دستور ہے, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. اپنے پاک دلوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو فوراً تمہارے لیے مدد بھی آ جائے, فوراً مدد بھی آ جائے. اللہ کریم ان غزہ کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی فتح کو سدا قائم و دائم رکھے, اور ان کے ٹوٹے پھوٹے بکھرے گھروں کو اللہ تعالیٰ پھر سے آبادی عطا فرمائے, ان کے کمزوروں کو مولا طاقت و قوت عطا فرمائے, ان کے شہیدوں کو مولا اجر عظیم نصیب فرمائے, ان کی بیواؤں کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے یتیموں کو مولا طاقت و قوت عطا کرے, ان کی مسجدوں کی آواز اور ان کی گونج کو مولا پھر سے بلندی عطا فرمائے, اور ان کے صبر اور ان کے استقامت اور ان کے حوصلے کو مولا پورے دنیا کے مومنین کے دلوں میں قائم عطا فرمائے. ان کے ہر طرح کے حوصلے, ان کے صبر اور ان کے مجاہدانہ استقلال کو مولا ہم سب کے لیے ذریعے نجات عطا فرمائے. ہماری نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سبق آموز حکایت عطا فرمائے. مولا کریم تیرے دربار میں دعا ہے, ہم سب کو بزدلوں کی جماعت سے نجات عطا فرما. مولا ہم کو منافقین اور مشرکین اور کافرین کے وسوسوں اور ان کے تمام فتن و شرور سے محفوظ فرما دے. ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا, فتنوں کے فتنے سے بچا, شرین کے شر سے بچا, حاسدین کے حسد سے بچا, جلنے والوں کی جلن سے محفوظ فرما. خدایا قدیر و جبار, آخری سانس تک ہمارے ہاتھوں کو غیروں کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما دے. تو اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.